آیا نمبر 89. خالا خد اجیبت دعوتکما فاستقیما لا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون. اللہ کیا کریا، اللہ نے جواب دیا. جواب میں فرمایا اللہ نے تم دونوں کی دعا قبول قبول ہو ہو. گئی، مستجاب ہو گئی، قبول ہو گئی. آپ ثابت قدم رہنا. آپ تمہیں بہت آزمائشیں آئیں گی. دعا جب قبول ہو جاتی ہے، اللہ اچھے حالات لاتا ہے، تو اس سے پہلے کچھ بہت ٹینشن کا پیریڈ بھی گزر جاتا ہے، ٹینشن کا پیریڈ بھی ہو جاتا ہے. اب ایسے ایسے آزمائش آئیں گے کہ تم ثابت قدم رکھنا، تمہارے قدم میں ڈگمگانا نہیں، اور ان لوگوں کے طریقے کی ہرگز پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے. اب یہاں علم رکھنے سے مراد ایک بہت بڑی بات ہے. پہلے دیکھ لیں گے، یہ ورڈ میننگ لکھ لیں گے. قالا، اس نے فرمایا. کس نے؟ اللہ نے فرمایا. اللہ نے. قد اجیبت، قبول ہو چکی تمہاری دعا، مستجاب ہو قبول. گئی، ہو گئی. دعوتکما، تم دونوں نے دعا کی، تمہاری دعا قبول ہوگی. فاستقیما، استقامت پر رہنا. اب تم دونوں ثابت قدم رہنا، اب تمہارے قدم ڈگمگانا نہیں. ولا تتبعانی، اور نہ چلنا سبیل الذین، ان لوگوں کی راہوں پر جو لا یعلمون. اب یہ پیغمبر کی وساطت سے لوگوں کو کہا جا رہا ہے. یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ حقیقت کو نہیں جانتے اور اللہ تعالیٰ کی مصلحتوں کو نہیں سمجھتے، وہ باطل کے مقابلے میں حق کی کمزوری اور اقامت حق کے لیے صحیح کرنے والوں کی مسلسل ناکامیاں اور یہ باطل کے ٹھاٹ اور ان کی دنیاوی سرفرازیاں دیکھ کر یہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ کو یہی منظور ہے کہ اس کے باغی، اسے بغاوت کرنے والے، ایمان نہیں لانے والے دنیا پر چھائے رہیں، اور شاید یہ جو حضرات ہیں حق پر رہنے والے خود ہی باطل کے مقابلے میں حق کی تائید کرنا نہیں چاہتے. تو اللہ ان کی تائید کرنا نہیں چاہتا. جو حق کو بڑھانا چاہتی ان کی تائید اللہ نہیں کرنا چاہتا، اور جو باطل ہے ان کو سرفرازی دے رہا ہے. شاید ایسا ایک امپریشن آ جاتا ہے ان لوگوں میں. سمجھے؟ اور ایک بار بولوں، یہ جو ہے نا، اب آج کل کے حالات لے لیں گے. آج کل مسلمانوں کو پریشانی ہے نہیں، مسلمانوں کو جی. پریشانی ہے، دوسرے لوگ ہے آرام سے ہیں. تو ہمیں کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ مسلمانوں کے ساتھ کہیں کو نہیں ہے. سو نہیں، کلمہ پڑھنے والے ہاں ہمیں، کریکٹ. اللہ کے کلمے کو بلند کرنے والے ہمیں، اس کی سربلندی کے واسطے کام کرنے والے ہمیں. کئی کو ہم نہ پریشانی میں رکھا سو، کئی کو ہم نہ مصیبتہ میں رکھا سو. یہ آزمائشاں کئی کو، اور وہ لوگ کتنا آرام سے ہے نا، ان کو سب کچھ دیا ہے. ہم نہ یہ مصیبتیں ہیں. وہی علامہ اقبال کا شعر ہے، ان کو ملے حور و خسور اور مسلمان کو ملے وعدہ حور. یہ کیا واسطے؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے ایک کئی اور مقام پر ہم پڑھ چکے ہیں کہ جس کا مقام زیادہ ہے، جس کو رتبہ زیادہ ہونے والا ہے، اس کی آزمائش بھی بہت ہوتی ہے. بڑے عہدے کے واسطے بڑا امتحان نہیں، جتنا بڑا عہدہ ملنے والا ہے. اب یہ اس کا جنت جو یہ ہے، اللہ کہتا ہے کہ تمہیں آزماؤں گا. کس سے آزماؤں گا؟ بنین، اموال، زینت الحیات الدنیا. نقصان کس کس کا نقصان بتایا جا رہا ہے؟ 8 چیزوں کا نقصان بتایا ہے اللہ. مال، اولاد، دولت، اور یہ جو اولاد، تمہارا اولاد بھی، اولاد، اور جو تمہارا کاروبار ہوتا ہے اس میں نقصان، کساد مندی، اور حالات، سنگین حالات. اب جیسے ہمارے حالات ہیں، ایسے 8 چیزوں کی فہرست اللہ بتا رہا ہے کہ ان چیزوں سے تمہیں ضرور آزماؤں گا. ہے نہیں؟ ہم پڑھ چکے ہیں نا اس سے پہلے، ضرور آزماؤں گا. آزمائش ضرور ہے. یہ اس لیے کہ اللہ ٹھونگ بجا کر اب آپ کو یہ چیز خریدنا چاہ رہی، مول کر رہی، آپ قیمت دے رہی، تو آپ کیا کرتی ہیں؟ اسے ہر اینگل سے دیکھتے نا، یہ صحیح ہے کیا، یہ صحیح ہے کیا، اس کی فنیشنگ صحیح ہے کیا، یہ برابر ہے کیا، یہ کارآمد ہے کیا، کتنے اینگل سے دیکھتے اگر خریدنا تو. اب اللہ ایک جنت دے رہا ہے. جنت کے مستحق بننے والوں کے کیا کوالٹیز ہونی چاہیے؟ انہوں کمپیٹنٹ ہونا اس کے واسطے.
They should qualify to that. They should be competent for that. इतनी बड़ी जगह, इतना बड़ा ओहदा, इतना बड़ा मुकाम कि वो तो इंसान समझ भी नहीं सकता, तखय्युल भी उसका नहीं हो सकता, तसव्वुर भी नहीं हो सकता। इतनी बड़ी चीज अता करना है तो उसके शायान शान इन्हें है क्या, इस काबिल है क्या इंसान, इस काबिल है जो मेरी इतनी बड़ी ये सास का, इतनी बड़ी नेमतों का मुस्तहक हो, क्वालिफाइड हो, कॉम्पिटेंट हो। तो इसके वास्ते अल्लाह हर तरीके से आजमा रहा है, औलाद से भी आजमा रहा है, दौलत से भी आजमा रहा है, दे को भी आजमा रहा है, ले को भी आजमा रहा है। दिया तो शुक्रगुजारी करता है क्या, लिया तो क्या करता है इन्हें, क्या अपने इस पर कायम रहता है, नहीं वाविला मचाने लग जाता है, ये दुनिया की हिर्स में लग जाता है। ये सारी चीजें इसलिए हैं कि ये बहुत बड़ी चीज है जो मुसलमान को अता होने वाली है, जो मोमिन को अता होने वाली है। और उसके वास्ते वो यार्ड स्टिक जो रखा है, वो सारे पैरामीटर्स जो हैं उसे पूरे करना, वो जो अल्लाह प्री रिक्विजिट्स रखा है मुत्तकियों के, जो ये बताता है अल्लाह हर हाल में सब्र करने वाले। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एग्जांपल दे दिया, हर हाल में मेरा बंदा हर इम्तिहान से गुजरा, हर इम्तिहान में कामयाब। आखिरी एग्जाम, कौन सा आखिरी एग्जाम था, बुढ़ापे की औलाद को कुर्बान करना था, कुर्बान करना, आजमाइश से गुजार डाला। अब वो तो समझा था, मुमतहिन नहीं समझा था, मुमतहिन कौन, एग्जामिनर खुद समझा था कि ये बहुत बड़ा एग्जाम है, मुमतहिन समझ गया था कि ये बहुत बड़ा एग्जाम है, ये इंसान के बस की बात नहीं है, ये इंसान इतना नहीं कर सकता। अल्लाह को मालूम है इंसान का बस कितना है, इंसान का दिली हालत, दिली कैफियत क्या होगी, बुढ़ापे की औलाद के तई क्या मोहब्बत होगी। फिर भी पूछ बैठा, ख्वाब में दिखा दिया, फिर वो घर बैठे तो क्या किया, अल्लाह ने जोश खुदावंदी चिल्ला उठी, बस इब्राहिम बस, सद्दक तो रोए, तूने कर दिखा दिया, सच कर दिखा दिया, तेरा ख्वाब जो मैंने दिखाया तुझे, तुझसे मांगा तेरे बेटे की कुर्बानी का, तूने सच कर दिखा दिया। ये तो मेराज थी, ये इम्तिहा थी, ये एग्जाम, आजमाइश की इम्तिहा थी, इससे ज्यादा नहीं हो सकता था। जो 86 87 इयर्स में मिले, 100 इयर्स क्रॉस होने के बाद अब बुढ़ापे में आ गया, बुढ़ापे क्या लाठी जो समझ कर था उसे अगर कुर्बान करने के वास्ते तैयार हो गया, कुर्बान कर भी दिया, अपनी दानिश में कुर्बान कर दिया। वो अल्लाह की मर्जी थी, अल्लाह की मशीयत कुछ और थी, वो मेंढा आ गया, वो खड़ा, फिर अल्लाह ने जो एजाज दे दिया, क्या दिया, इमाम उन्नास का लक़ब दे दिया, खलील का लक़ब दे दिया, कितने अलकाब से नवाज दिया। ये कब हुआ, बुढ़ापे में, इम्तिहान से गुजरने के बाद हुआ, नहीं इम्तिहान से पहले तो नहीं, आसानी से घर बैठे ठंडे पेट तो नहीं ना, कितने इम्तिहान से गुजरे। तो ये इम्तिहान इसलिए दे रहा है, दुनिया में कभी कभी बहुत ज्यादा इम्तिहान आ जाते हैं, अल्लाह आजमा लेता है, लेकिन है क्या उसका बदला, बहुत ज्यादा है। कोई बड़ी चीज लेने के लिए बहुत सी कुर्बानियां देने पड़ती, तो अल्लाह आजमाता है, ठोंग बजा कर देखता है कि वेदर ही इज कॉम्पिटेंट, ही इज क्वालिफाइड फॉर दिस पोस्ट, ये जगह लेने के लिए, यहाँ इतने नेमतों के इसका अहाता, ये इतने नेमतों से सरफराज होने के इन्हें काबिल है क्या, मेरा ईमान इसके अंदर कितना है, ईमान की पुख्तगी कितनी है, क्या लेवल है इसके ईमान का, ये देखने के लिए हर चीज से आजमा दिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। और वही रविश है अल्लाह की। अब मुसलमानों पर भी आजमाइश है। ये आजमाइश दो तरीके की होती है, एक तो आजमाइश क्या है, अजाब, अजाब कई को हमारे अमल की वजह से, अमल की तरफ से अजाब, में मुब्तला, कुफ्र में मुब्तला, बिदात कितने हैं, बिदत किसे बोलती है मालूम ना आपको, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबियों से साबित है उतना ही करना है, उससे आगे जो बढ़ जाता है वो बिदत होती है। बदा यब्दउ हम पढ़ चुके हैं, मतलब है नई चीज पैदा करना दीन में। तो ये बिदात करने वाले, ये कुफ्र करने वाले, शिर्क करने वाले कितना है दुनिया में। आप शाज ही फाइंड आउट करेंगे किसी को कि कोई 100 में एक मिलेगा जो दिन पर कायम है, जो ईमान बिल्ला रखता है, ईमान बिल्ला, सिर्फ अल्लाह पर, सिर्फ अल्लाह पर, कोई वली नहीं, कोई दूसरा नहीं, कोई इंसान का ये नहीं, वो सरदार कर देगा, वो कोई कर देगा, ये जो है ना कुफरिया कलमात, शिरकिया कलमात है, ये भी अल्लाह को नहीं पसंद। भरोसा पूरा अल्लाह पर रखना।
हर कदम पर, हर सिचुएशन में, हर हालत में अल्लाह पर जो भरोसा रखता है, तो यहाँ वही तलकीन की जा रही है, खाला कद उजीबत दावतुकुमा फस्तकीमा, कायम रहो, इस्तिकामत रखो, यानी साबित कदम रहो, वला तबियानी सबील लजीना ला यालमून, ये नहीं जानने वाले हैं ना, इन्हों तुम ना भटकाती, क्या तुम्हें मुसीबत में है, सो आओ हमारी तरफ, ये काम करो, हराम को अपना तो बहुत ज्यादा नफा है, ए हलाल 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 करको, ना बच्चों की फीस पे कर सक रही तुम्हें, ना शानो शौकत की जिंदगी गुजार रही, ना तुम्हारा घर ढंग का है, ना कोई रहन सहन अच्छा है, आओ देखो ये सब करे, तो ये सूद का मामला है, ये कोई मुश्किल नहीं है, आराम से होने वाला है, और अब तो सारी दुनिया कर रही है, करो। अब ये क्या, ला तालमून अल्लज़ीना ला तालमून, क्या बोल रहा है अल्लाह, वला तत्तबिआनी, नहीं उनकी इत्तबा करना और ना उनके रास्तों पर चलना, सबील लजीना, उन लोगों का रास्ता जो ला यालमून, इल्म नहीं रखते, उनको इल्म नहीं है, अल्लाह के तालीमात है, अल्लाह के अहकामात हैं, सूद लेने वाला, बैंकिंग ये वो करने वाला, उससे क्या है, अल्लाह का, अल्लाह और उसके रसूल का ऐलान जंग है। अब फिर भी वो जो बैंकिंग बिजनेस में रहती हैं, या सूद लेकर जो काम करती हैं, सूद पर जो काम करती हैं, वो सब ये जो खींचती दूसरे लोग जो बहकाती, आओ इधर इस तरफ आओ, ये काम है, ऐसा है, सूद लेकर ये जो कारोबार चलाती, या बहुत बड़े बड़े बंगले बनाती, वो किराए पर देती, और ये जो प्राइवेट से, ये बैंकिंग का तो सूद एक बात है, ये प्राइवेट जो होता है वो 18% होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, वो सूद में मुलविस होने वाला अपने घरों से हाथ धो बैठता है, घर रहन रखता है या कोई चीज रहन रखता है, तो वो हाथ धो बैठता है, ये जो इन लोगों के साथ रखती ना, मरवाड़े के पास से, वो वापस नहीं ले सकते, इन्हों छुड़ा नहीं सकते वो, तो सूद बिजनेस से इतनी मलामत है कि उसके अगेंस्ट अल्लाह और रसूल के, अल्लाह और उसके रसूल का जंग का ऐलान है। तो ये चीजा, ये जो नहीं जानते ना, उन्हों भटकाती, ये राह पर आने के वास्ते उन्हों इश्काल थी, और उसमें ना जाना। अल्लाह ताला ने जवाब में फरमाया, तुम दोनों की दुआ कबूल हो गई, यानी फिरौन के मुताल्लिक जो तुमने दुआ की थी, यानी उसके हक में जो बददुआ की थी, वो कबूल हो गई, अब तुम साबित कदम रहो, तुम्हारे ऊपर आजमाइशें आएंगे, और बनी इसराइल पर भी आजमाइशें आएंगे, वो तुम्हें बहुत परसिक्यूट करेगा, लेकिन तुम साबित कदम रहना, और उन लोगों के तरीके की हरगिज पैरवी नहीं करना जो इल्म नहीं रखते। अब हमारे मामले में भी यही है, बहुत से ला इल्म है जो खींचेंगे, उनकी राह पर खींचेंगे, बहुत से चले भी जाती, उनकी राह पर चले भी जाती, नहीं जानने वाले, वो अच्छा है, वही अच्छा है, बहुत ज्यादा उन्हें अट्रैक्ट भी करता है वो, तो उसी पर चले जाती, ये शिर्क है ना, ये जो जानती खबर परस्ती है वो, ये बहुत अट्रैक्ट करता है लोगों को, और लोग लेकर भी जाते, ये एक पिकनिक के जैसा जाती, 3 दिन 4 दिन। मैं बोली एक मेरे फ्रेंड का वाकया आपको बोली, बहुत अच्छे थे, हाँ हाँ बोलो। लेकिन ये जो पलटे, तो बहुत ही अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो यहाँ वही मामला बयान हो रहा है कि ऐसा हो सकता है, तो हमें मूसा अलैहिस्सलाम को कहा जा रहा है कि साबित कदम रहो, फस्तकीमा, साबित कदम रहो, ना डगमगाना, तुम्हारे कदम ना डगमगाना, तो उनके वास्ते नहीं, उनके वसातत से हम सबके लिए, ये कैसे भी हालात आए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ईमान बिल्लाह से हटना नहीं, अल्लाह ने साबित कदम रखे, ईमान पर रखे, ईमान पर खातिमा फरमाए, ऐसी कैफियत में के कामिल ईमान पर हो, कोई दूसरा ना हो, कोई शिर्क ना हो, कोई आमीन ना हो, आमीन कलमा आमीन शहादा, कलमा शहादा पर हमारा खातिमा हो, कलमा तैयबा पर खातिमा हो, और अल्लाह आला इलीन में जगह नसीब फरमाए हमें, वो बहुत बड़ा मुकाम वो जो है, अल्लाह वो अता फरमा दे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।